بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالا شاہین کی یادگار شہر کے جنوبی دروازے سے باہر فصیل شہر کے پہلو میں واقع تھی۔ یہ کسی زمانے میں شاہی پارک تھا، لیکن آج کل یہاں قبرستان بن چکا تھا۔ خصوصاً طبقہ عمرہ اور سلطان کے خاندان کی قبریں اسی قبرستان میں بنائی جاتی تھیں۔ یہاں درختوں پر الفالو بولتے تھے اور شاہی باغ کی ساری نشانیاں مٹی میں مل چکی تھیں۔ یہاں دن میں بھی آسبوں کا بسیرا رہتا اور کبھی کبھار ہی کوئی شخص اس جانب سے گزرتا تھا۔ مارسی کی بگھی باغ کے اندر داخل ہوتی چلی گئی۔ نوعمر کوچوان اپنے قد سے زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ بگھی کو آبنوس کے درختوں کے سائے میں لے گیا اور گھنی جھاڑیوں کے عقب میں کھڑا کر دیا۔ مارسی بگھی سے اتری اور یادگار میں موجود بارہ دوری کی عمارت کی جانب چل دی۔ اس کی بھاری بھرکم چادر میں خراسان کا دو دھاری خنجر چھپا ہوا تھا۔ مارسی مارتھا کی بیٹی تھی اور اپنی ماں کی طرح ہوشیار اور بہادر تھی۔ وہ اتنی ویران جگہ پر آتے ہوئے ذرا بھی نہ گھبرائی۔ مارسی بوسیدہ بارہ دوری کی سیڑھیوں پر پہنچی اور پھر بارہ دوری میں داخل ہونے سے پہلے کسی قدر محتاط لہجے میں پکارا، سالار، محترم سالار، کیا آپ یہاں ہیں؟ مارسی اگرچہ قاسم کے نام سے واقف تھی، لیکن وہ قاسم کو سالار ہی کہا کرتی تھی۔ مارسی کے پکارنے پر کوئی جواب نہ آیا تو وہ یہ جان کر ٹھٹک گئی کہ قاسم ابھی تک نہیں پہنچا۔ مارسی نے قاسم کا گھوڑا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن شاید قاسم ابھی تک نہ آیا تھا، حالانکہ اسے مارسی سے پہلے پہنچنا تھا۔ مارسی کو تشویش لاحق ہوئی اور اس کی گرفت اپنے خنجر پر مضبوط ہو گئی، لیکن اگلے لمحے مارسی کے عقب میں موجود جھاڑیوں کی اوٹ سے ایک لمبا تڑنگا نقاب پوش برآمد ہوا۔ یہ قاسم ہی تھا۔ قاسم نے آتے ہی مارسی سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں کچھ دیر آپ کے ممکنہ تعاقب کا شک مٹاتا رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی آپ کے تعاقب میں ہے تو سامنے آ جائے۔ مارسی نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی، لیکن اسے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ قاسم ایک محتاط شخص ہے۔ اب قاسم اور مارسی بارہ دوری کی سیڑھیاں چڑھ کر نیم تاریک اور بوسیدہ چھت کے نیچے آ گئے۔ بارہ دوری کے فرش پر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ خزاں کا عروج تھا اور خشک پتے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ منتخب کی اور وہ دونوں بارہ دوری کے فرش پر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھ گئے۔ یہ مارسی اور قاسم کی پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں سامنے یادگار کی کھنڈر بنی ہوئی چار دیواری پر تھیں۔ دونوں کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ کی تلاش میں ان کا ضرورت سے زیادہ وقت صرف ہو رہا تھا۔ بالآخر مارسی نے سکوت توڑا، غالباً اپنے مجھے یہاں کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ مارسی کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ قاسم چونکا، کام؟ ہاں، واقعی میں نے آپ کو کام ہی کے سلسلے میں بلایا ہے، قاسم نے کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس نے مارسی کو کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے؟ پھر کام بھی کیسا؟ اس کے سامنے ساری صورتحال واضح تھی۔ مثلاً اسے ابو جعفر پر شک تھا۔ ابو جعفر مارسی کی ماں مارتھا کے گھر آتا جاتا تھا۔ مارتھا راسخ العقیدہ اسائن تھی۔ سکندر بیگ مارتھا کے زیر سایہ جوان ہوا تھا۔ لامحالہ سکندر بیگ ابو جعفر کے بھی قریب تھا۔ مارسی اپنی ماں، ابو جعفر اور سکندر بیگ کے حالات سے واقف تھی، لیکن خود کسی وجہ سے سکندر کو پسند نہ کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ سکندر کا مزاج ہو۔ بہرحال یہ طے ہے کہ مارسی سکندر کے خلاف تھی۔ قاسم اسی طرح کی باتیں سوچتا رہا۔ اب قاسم مارسی سے مزید کیا پوچھتا؟ کیا صرف یہی کہ ابو جعفر کے بارے میں اور کیا جانتی ہے؟ اور اگر صرف یہی بات تھی تو مارسی سے پوچھنے کی بجائے وہ ابو جعفر کے بارے میں براہ راست زیادہ بہتر کھوج لگا سکتا تھا۔ قاسم من ہی من میں سٹپٹا گیا، تو آخر کس بات کے لیے اس نے مارسی کو یہاں بلوایا تھا؟ بالآخر وہ زیر لب مسکرایا اور اتمام حجت کے لیے اس نے وہی سوال کر دیا، میں دراصل اب سے ابو جعفر کے بارے پوچھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے قاسم کے لہجے میں کیا تھا کہ یکلخت مارسی کا قہقہا نکل گیا۔ قاسم نے سوچا یہ قہقہا تو نہیں ہو سکتا، ایسے لگتا ہے جیسے کسی ہندوستانی مندر میں نقرئی گھنٹی بج اٹھی ہو۔ مارسی صرف حسین ہی نہ تھی بلکہ بڑی بھرپور اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مارتھا جیسی تجربہ کار ماں نے اسے بہادری سے بات کرنے اور تنقیدی نگاہ سے زمانے کو پرکھنے کا فن بھی سکھایا تھا۔ مارسی بھانپ گئی کہ قاسم کے دل میں چور ہے، غالباً محبت کا چور، لیکن وہ قاسم جیسے وجیحہ مرد کی وزاداری اور شرمیلے پن پر حیران تھی۔ اس نے شریر آنکھوں سے قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا،
मैं तो अबू जफर के बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मुसलमानों का मजहबी पेशवा है, बगदादी दरवाजे की मस्जिद में खतीब और पिछले 2 अशरों से यहाँ उदरना में मुकीम है। मजीद ये कि जब से मैंने होश संभाला है मैं इसे अपने घर आता जाता देखती हूँ। वो मेरी माँ के साथ घंटों अकेले कमरे में बैठकर यकीनन किसी खुफिया सरगर्मी पर बात करता है। मेरी माँ कट्टर मजहबी औरत है और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करने से दरेग नहीं करती। जहाँ तक मेरा अंदाजा है सिकंदर को मेरी माँ और अबू जफर ने सुल्तान के साथ बेवफाई के लिए तैयार किया है। मुझे सिकंदर कती पसंद नहीं, वो बचपन से मेरे साथ पिलकर जवान हुआ है, लेकिन वो फितरतना कमीना और बदमिजाज है। बस यही चंद बातें हैं जो मैं जानती हूँ। मार्सी के बयान पर कासिम दिल ही दिल में मिस्करा दिया। उसने जो कुछ सोचा था मार्सी ने लफ्ज बा लफ्ज वही सब कुछ बता दिया। अब उसे यकीन होने लगा कि इसने मार्सी को महज इसलिए नहीं बुलाया बल्कि इस मुलाकात के पीछे कोई और जज्बा भी है जो शुरू में काफी दिन तक बेनाम सा रहता है और फिर जब उसे धीरे धीरे नाम मिलते हैं तो वो मोहब्बत कहलाता है। कासिम को यकलख्त खुद पर गुस्सा सा आने लगा। उसने अपने आप से कहा, कासिम मियाँ होश में आओ, तुम एक सिपाही हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे दीन के लिए वक्फ है, तुम किसी के साथ उम्र भर साथ निभाने का पैमान कैसे बांध सकते हो? और फिर मार्सी तो मुसलमान भी नहीं, एक ईसाई लड़की है। मुआ इसे ख्याल आया और उसने मार्सी से एक अजीब सवाल कर दिया, अच्छा मार्सी, अब की कहानी से तो ऐसे लगता है जैसे अब सल्तनत उस्मानिया और इस्लाम के लिए अपने मजहब ईसाइयत की निस्बत हमदर्दाना जज्बात रखती है। क्या आपके दिल में कभी इस्लाम को समझने का ख्याल भी आया है? कासिम का सवाल बहुत अजीब था। मार्सी ने चौंक कर कासिम को देखा और यकलख्त संजीदा हो गई। कासिम साहिब, मैंने इस्लामी तालीमात के मुताबिक तालीम हासिल की और परवरिश पाई है। मेरे रहन सहन, आदात व अतवार और रगविती में इस्लाम जारी है। अलबत्ता मैंने इस्लाम कबूल करने का रस्मी ऐलान कभी नहीं किया। मगर क्यों? जब आप इस्लाम से इस कदर मुतासिर हैं तो फिर वो क्या रुकावट है जो आपको इस रोशनी में दाखिल नहीं होने देती? कासिम को मार्सी के जवाब से मजीद तजस्सुस पैदा हो गया था। इसके दूसरे सवाल पर मार्सी ने कहा, क्या ऐलान करना जरूरी है? मैंने तो अब तक जो कुछ समझा है वो ये है कि हर अच्छी बात और मुतवाजिन अमल इस्लाम है और जो कुछ मुतवाजिन नहीं वो गैर इस्लामी है। मैं कोई गैर मुतवाजिन काम नहीं करती और हर अच्छी बात को पसंद करती हूँ। तो क्या अब मेरा मस्जिद में जाकर अबू जफर जैसे पेशवाओं के हाथों पर रस्मना इस्लाम कबूल करना और मार्सी की बजाय सकीना नामीम रख लेना भी बहुत जरूरी है? मार्सी की बात सुनकर कासिम के छक्के छूट गए। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक गद्दार ईसाई माँ की बेटी इस कदर साहिबाक इल्म और समझदार हो सकती है। वो मार्सी की माकूल बात से लाजवाब सा हो गया और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं कि ज़ाहिरना भी इस्लाम इख्तियार करके आपके लिए मुआशरती तौर पर बेहतर जिंदगी के मौके हैं? मसलन आप कलिमा पढ़ लें तो लोगों में आपकी इज्जत व तकरीम और हैसियत बढ़ जाएगी। कासिम महसूस कर रहा था जैसे इसने फिर कुछ गलत कह दिया है। मार्सी ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसा करती तो यकीनन बेहतरी के मौके बढ़ जाते और सबसे पहले ये होता का सुल्तान अपने मुंह बोले मुसलमान बेटे सिकंदर के साथ मेरा निकाह करवा देता, जबकि मैं इसे नापसंद करती थी। और रह गई ये बात कि इस्लाम कबूल करने से लोगों की नजर में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। इस्लामी एतबार से भी गैर माकूल है। इज्जत तो बढ़नी चाहिए लेकिन अल्लाह की नजर में, और मैं समझती हूँ वो महज इखलास नियत से भी बढ़ जाती है। कासिम सोच रहा था जैसे वो किसी आम लड़की की बजाय किसी आलमा फाजिला के पास बैठा हो। अब वो मार्सी पर मरमिटा था। वो हुसैन तो थी ही लेकिन इसकी जहानत और अंदाज गुफ्तगू उसकी शख्सियत को मजीद निखार रहे थे। इसी ख्याल के तहत कासिम ने फिर कहा, लेकिन मार्सी, अब जाहिर अलिफा इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तो आपकी आइंदा जिंदगी किसी मुसलमान जीवन साथी के साथ कैसे मुंसलिक होगी? मेरा मतलब ये है कि अब ईसाई मजहब पर रहेंगी तो शायद आपकी शादी भी किसी ईसाई नौजवान के साथ होगी। कासिम ने सादा से अंदाज में मार्सी पर एक अहम सवाल कर दिया। इस कदरदानाई से बातें करने वाली मार्सी की पलकें हया से झक गईं और उसके चेहरे पर सुर्ख सुर्ख बिजलियां सी दौड़ने लगीं। शादी के जिक्र से मार्सी जुज़-बुज़ है कर रह गई। कासिम ने मार्सी के चेहरे को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया, हो ना हो ये लड़की भी मुझे चाहती है। कासिम को तमानियत सी महसूस हुई। मार्सी ने कासिम के सवाल पर सिर्फ इतना कहा,
मुझे ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल करने पर कोई एतराज नहीं, मैं तो अपनी माँ के रोई की वजह से खामोश हूँ। मार्सी खामोश हो गई। कासिम इसकी बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज गोया मार्सी ने सिर्फ मुसलमान होने का एतराफ ही नहीं किया था बल्कि एक तरह से पैगाम मोहब्बत भी कबूल कर लिया था। अब कासिम किसी कदर खिलकर कहने लगा, मार्सी, आपकी सेहर अंगेज शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। आप एक खातून हैकर मर्दों से ज्यादा अक्ल विशूर की बातें कर लेती हैं और आपकी आंखों से तो मुझे डर लगता है। आखिरी जुमला अदा करते हुए कासिम जुमानी अंदाज में मुस्कुरा दिया। मार्सी ने मुस्कुराते हुए पूछा, डर क्या इतनी बदसूरत हैं मेरी आंखें? साथ ही मार्सी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पटपटा। कासिम ने मार्सी की हुसैन आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे डर लगता है कि मैं कहीं उन झीलों में डूब ही ना जाऊं। ये खिली शरारत थी। मार्सी छुई मुई सी हो गई। उसका चेहरा गुलनार हो चुका था। वो जुबान से कुछ न बोली, बस एक बार सिमसाई और फिर जेर लब मुस्कुरा दी। कासिम ने लोहा गर्म देखा तो फिर मुखातिब हुआ, मार्सी, अगर मुझे जिंदगी में आपके मशवरों का साथ हो तो मैं शायद दुनिया का आधा फसाद मिटाने की जुर्रत कर सकूं। मार्सी कासिम के तराशीदा जुमले पर दिल ही दिल में अश कर उठी। अब वो कुछ कहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद इसने अल्फाज का सहारा लिया, मेरे मशवरे आपकी बसीरत से ज्यादा नहीं हो सकते। मेरे लिए इससे बड़ा रुतबा क्या होगा कि मैं अब जैसे सच्चे और शुजा सालार की मुशीर कहला सकूं। कासिम का दिल बिल्लियों उछल रहा था। गोया मार्सी ने इसका इकरार वफा तस्लीम कर लिया था। अचानक मार्सी को शरारत सूझी और वो कहने लगी, सालार साहिब, क्या अपने इसी किस्म की गुफ्तगू के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? मैं तो समझी थी कि मुल्क ओ मिलता का कोई फरीजा आपको यहाँ इस खंडर में खींच लाया है। कासिम एकदम खफीफ सा हो गया। उसने जय पत्ती हुए लहजे में कहा, दरअसल मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। कासिम ने मुहावरे का सहारा लिया था, लेकिन मार्सी ने यकलख्त एक नए रंग में बात की, नहीं हुजूर, ये बिल्कुल गलत फलसफा है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा है जो न मोहब्बत में जायज है न जंग में, लेकिन शर्त यह है कि जायज और नाजायज करार देने का फैसला इंसानी नुक्ता नजर के ख्याल से किया जाए। ये मुहावरा तो हैवानात पर मुंतबिक होता है क्योंकि वो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज समझते हैं। अब कासिम को अपनी कम मायगी का एहसास होने लगा। इस कदर काबिल और दाना लड़की इसके असाब पर सवार हो रही थी। उसने अपने अंदर के खाबीदा इंसान को आवाज दी और अगले लम्हे मार्सी को हैरान कर दिया। मार्सी, इसमें कुछ शक नहीं कि आपकी नजर गहरी बातें भी परख लेती है, लेकिन हकीकत यह है कि मोहब्बत भी जंग ही का दूसरा नाम है। जंग मोहब्बत का। मैं एक सिपाही हूँ। मुल्क ओ मिलता की बका के लिए जंग लड़ना मेरा फरीजा है, लेकिन मोहब्बत मेरे लिए इस फर्ज की तकमील का रास्ता। इस लिहाज से मैंने मोहब्बत के लिए बोला हो, मुल्क ओ मिलता के लिए एक ही बात। कासिम की खूबसूरत बात से मार्सी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो लाजवाब हो चुकी थी, चुनांचे खिफत आमेज अंदाज में महज हंसकर खामोश हो गई।